So, a very good evening to all the parents, students, and teachers. A heartily welcome you. I heartily welcome you all to today's webinar. I hope all the parents are sitting with their children. Our lead speaker is a renowned educationist with an experience of almost 3 decades. She has been felicitated with the National Teachers Award by the Honorable President of India for her exemplary and tireless efforts. She believes that real education lies way beyond the books. I would like to welcome our Honorable Principal Ma'am, Dr. Savita Arora Ma'am. A very good evening to you, ma'am. I request you to please take over this platform and guide our students and parents with your precious and golden words. Good evening, everyone, and very good evening to all the students also, those who are here with their parents today. And I hope that I would be able to come up with many of the queries, many of the FAQs which are going on in your mind, and it can be answered at the end of the webinar. So this is the time when we all are locked up in our own places, and still we have connected 100 people at this platform. So kudos to everyone, those who have really spared out their time to come and listen to us. See, when we are prepared to listen somebody, we have very high ambitions, very high expectations. पता नहीं ऐसा क्या आज मैम बता देंगी जो मजा आएगा और हम सुनना चाहते हैं. So I would really let you know, मैं कुछ भी नया नहीं बताऊंगी. जैसी मैं हूँ, जो मैं चाहती हूँ, मैं वही बताऊंगी. बस that's it. और आपको कोशिश करनी है कि आप मेरे साथ कनेक्टेड रहें so that मुझे मोटिवेशन मिलता रहे. थ्रू चैट बॉक्स आप मुझे आगे बढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेट करते रहेंगे. So lovely listeners of today, a very good evening to all of you. And I wish आपके लिए मॉर्निंग से लेकर till the other morning, whole day इतना ही प्यारा सा बीतना चाहिए. एक भी मिनट एक दिन में ऐसा नहीं होना चाहिए जब आप सोचें कि आप खुश नहीं हैं. ये हमारी दुआ है और हम सच्चे दिल से ये चाहते हैं कि हम आपको हमेशा खुश देखें, बच्चों को भी और उनके मम्मी पापा को भी और उनके मम्मी पापा को भी. तो आज हम उस बने हुए मकान को घर बनाने की बात करते हैं. आज हम कोशिश करते हैं कि हम अपने रिलेशंस को किस तरह स्ट्रॉन्ग बनाएं, उसके बारे में कुछ बातें करते हैं. फैमिली में रिलेशंस कैसे होते हैं ये सब आप जानते ही हैं. और फैमिली है, 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, 8 लोग हैं, तो आपस में सबके विचार मिलना नॉट पॉसिबल. सो ऐसे केसेस में हम उस मकान को घर बनाते बनाते ये भूल जाते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले अपने आप को बनाने की है, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं या बड़े हैं. सो आप लोगों को, आई थिंक if I'm speaking in this way, it is easily understandable by all of you. That's why I'm using this. So I'll be little bilingual so that I can reach you people. So I will be talking to students also in between. कुछ बातें बच्चों के लिए, कुछ बातें आपके लिए, लेकिन सभी बातों का एक ही रास्ता होगा और सभी बातें एक ही जगह आकर खत्म होंगी कि हम कैसे खुश रहें. कुछ नया नहीं है इसमें. अभी within a minute, if I ask you to write who you are, आप अपने आप को कैसा बताना चाहेंगे, I would request कि बच्चे लिखें, बच्चे अपनी तरफ से लिखें who am I. एक वर्ड में आप अपने आप को एक्सप्लेन करें बेटा.
because you are now mature enough to write down the things. एक वर्ड लिखना है आपने, सभी बच्चे एक एक वर्ड लिखेंगे और बताएंगे कि वो कैसे हैं. उस वर्ड से मुझे पता चल जाना चाहिए कि आप अपने आप को कैसा समझते हैं. Start writing. Teachers may help out. Yes. जल्दी जल्दी लिखना होगा, हमें रुकना नहीं है. मैं पढ़ती जाऊंगी, डोंट वरी. You have to match my speed. Yes. Happiest, polite, brave, innovative. I'm beautiful. Very good. Lovely. Talented, honest, lucky, grateful, kind, good, happy, happy, active, lucky. बहुत लकी है भाई, बहुत लकी बच्चे हैं हमारे पास. दैट्स गुड. जो अपने आप को लकी बताता है उसके पास सब कुछ है, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है. इमोशनल, स्ट्रॉन्ग, ब्रेव, ऑनेस्टी, इनोवेटिव, बहुत क्रिएटिव लोग भी हैं. एम्बिशियस, काइंड, इंटेलिजेंट, गुड, वेरी गुड. यू आर राइटिंग वेरी राइटली व्हाट यू आर. मुझे मालूम है आप कैसे हैं, आप वही सब लिख रहे हैं. हार्ड वर्किंग, ग्रेटफुल, गुड, कनेक्टेड, कंसर्न्ड, काइंड, टॉप ऑफ द वर्ल्ड. ओके, गुड. एक्टिव, वर्सेटाइल. वर्सेटाइल बहुत अच्छी बात है, आप वर्सेटाइल हैं, टैलेंटेड हैं. कनेक्टेड, कंटेंटेड, सेटिस्फाइड है. ओके, गुड, वेरी गुड. ब्लेस्ड, गुड. आपकी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है बच्चों, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स लिख रहे हो, दिल खुश हुआ हमारा. आउटस्टैंडिंग, गुड, वेरी गुड. एम्बिशियस, हेल्पफुल, डायनामिक, वेरी राइट. इंटेलिजेंट, कंटेंटेड, एक्टिव, एनर्जेटिक, लकी. अब आई थिंक आप लिखते जाएंगे क्योंकि आप तो अपने बारे में बताएंगे और मैं भी पढ़ लूंगी. डोंट वरी कि मैंने नहीं पढ़ा. सेटिस्फाइड, एनर्जेटिक, साथ साथ देखिए और सुनिए भी. आपने जितने भी वर्ड्स लिखे हैं, ऑल द वर्ड्स आर पॉजिटिव. सभी पॉजिटिव वर्ड्स हैं और बहुत हाई रैंकिंग वर्ड्स हैं, बहुत ही ज्यादा ऊंचाई वाले वर्ड्स हैं. अगर कोई किसी को काइंड, अपने आप को काइंड कहता है तो वो तो देवता है, क्योंकि देवता का काम ही होता है काइंडनेस दिखाना, देना, गिवर. कोई अपने आप को स्ट्रॉन्ग कहता है तो कितना कॉन्फिडेंट है वो. कोई अपने आप को टैलेंटेड कहता है तो कितना कॉन्फिडेंस के साथ क्रिएटिव है वो. कोई वर्सेटाइल कहता है तो उसके पास दुनिया की सारी खूबियां हैं, सारी चीजें हैं उसके पास. जो कंटेंटेड कहता है वो दुनिया का सबसे अच्छा खुशनसीब बच्चा है. और जो हैप्पी कह रहा है वो तो है ही. जो एक्टिव कह रहा है वो डर ही नहीं है किसी चीज का, वो इतना एक्टिव है कि वो कुछ भी कर दिखाएगा. वेरी गुड. आउटस्टैंडिंग मीन्स सबसे अच्छा, गुड. जो अपने आप को एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग, इनोवेटिव, क्रिएटिव, काइंड ऐसा समझते हैं, ब्लेस्ड समझते हैं, वो बच्चे दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे. उनको कोई कुछ नहीं कह सकता. तो मैं आज स्ट्रेस का पार्ट तो नहीं पढ़ाऊंगी उनको, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं है. और आज ये भी बता दूंगी कि उनको स्ट्रेस कैसे समझना है. पेरेंट्स को भी समझना है और बच्चों को भी समझना है कि स्ट्रेस इज जस्ट लाइक गुड कोलेस्ट्रॉल जो बॉडी को चाहिए. सो थोड़ा सा स्ट्रेस तो हमें चाहिए ही, और वो पॉजिटिव स्ट्रेस होता है. पॉजिटिव स्ट्रेस इज द सिनोनिम ऑफ पैशन. जब पॉजिटिव स्ट्रेस हमारे साथ होता है तो हम उसको अपने पैशन से ही काटते हैं. मतलब स्ट्रेस वर्ड को काटते हैं और पॉजिटिविटी अपने पास रख लेते हैं. सो व्हाट्स दैट? Now children, stop writing what you are. Now try to write out what do you do when you feel heavy, when you feel that you are stressed, or maybe your parents can write now. I mean, your parents' word you can write. What parents are thinking when they are into stress. Meditation. Okay. Okay. सब मेडिटेशन करते हैं या कुछ और भी है. लिसन टू म्यूजिक. ओके. ट्राई टू कंट्रोल. ट्राई टू कंट्रोल तो हम सभी करते हैं. गुड, अच्छी बात है. लेकिन जीत पाने के लिए कुछ और करना होगा ना. यस.
ओके, एक्सरसाइज, गुड। ये पेरेंट्स लिख रहे हैं ना, पेरेंट्स क्या चाहिए मुझे, बच्चों को तो क्या स्ट्रेस होगा, बच्चे तो हमारे खुश बिंदास बच्चे हैं सब। पेरेंट्स लिखें अपना स्ट्रेस कब कब होता है और कैसे करते हैं, आई मीन उसको कैसे रिलीज करते हैं। लाइट म्यूजिक, टॉक टू माई सेल्फ, गुड, वेरी गुड। प्रेयर, चैंटिंग, वंडरफुल। वॉच टीवी, ओके। आप रिलीव करते होंगे क्योंकि आपको कुछ खास चीजें अच्छी लगती होंगी टीवी में, वही देखा करिए। न्यूज तो और स्ट्रेस देने वाली चीजें हैं। चैंटिंग, टेक अ वॉक, गुड गुड। प्रेयर। सो सी, मैंने आपको वक्त नहीं दिया कि आप सोचें और फिर इस क्वेश्चन का आंसर दें। बिना सोचे समझे एक सेकंड के अंदर, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के अंदर आप आंसर देते जा रहे हो। इसका मतलब आप सब वही लिख रहे हो जैसे आप हो। तो स्ट्रेस बस्टर भी आपका पैशन ही होता है। तो फिर स्ट्रेस है कहाँ? अब आप सोचो कि आपको लाइफ में आपका पैशन पूरा करने का मौका ना मिले तो क्या करोगे? तो स्ट्रेस चाहिए ना, थोड़ा सा, थोड़ा सा ये वाला स्ट्रेस तो चाहिए। So positive stress is always required and it is being converted into energy. ये आपकी एनर्जी बन जाता है, इससे कुछ डिप्लीट नहीं होता, कुछ खत्म नहीं होता। कुकिंग, म्यूजिक, डांसिंग, सिंगिंग, जो भी आप लिख रहे हैं वो सब आपका इंटरेस्ट है, वो सब आपका पैशन है, आपको अच्छा लगता है, इसलिए आप स्ट्रेस से दूर होने के लिए वो करते हैं। बी इट एक्सरसाइज ऑल्सो, चाहे मेडिटेशन हो, एक्सरसाइज हो, योगा हो। कोई कुछ कुछ लोग तो स्लीपिंग भी लिख देते हैं कि सोना मेरा इंटरेस्ट है तो मुझे सो के ही मेरा स्ट्रेस दूर होता है। दैट्स ओके, वेरी। कोई ये भी लिख देगा कप ऑफ टी कैन रिलीज मी विद माई स्ट्रेस, दैट्स ऑल्सो गुड। जिसको जो अच्छा लगता है वो करता है। तो फिर जो चीज मुझे अच्छी लगती है और मुझे करने का वक्त ही नहीं मिलेगा उसे, तो क्या होगा? तो नेगेटिव स्ट्रेस होगा। तो पॉजिटिव स्ट्रेस तो चाहिए। पॉजिटिव स्ट्रेस इज जस्ट लाइक one of the thing which is very important ingredients of life. So अब हम तो स्ट्रेस की बात करेंगे ही नहीं क्योंकि वो तो हमारा शौक है, हमें चाहिए, हमें चैलेंजेस चाहिए, हम कुछ करना चाहते हैं। अभी आप लॉकडाउन पीरियड में हैं। Many of you, I'm talking to parents now, must be thinking I'm getting bored now. अब जल्दी से लॉकडाउन खुले, ऑफिस जाऊं, कुछ काम करूं, ऐसा सोच रहे होंगे। और कुछ ऐसे भी होंगे कि मैं तो परेशान हो गया इस लॉकडाउन से, पता नहीं कब ये लॉकडाउन खुलेगा, और जब खुलेगा ना तब मैं 1 हफ्ते की छुट्टी लेके आराम करूंगा। ऐसे भी लोग हैं क्योंकि वो ले रहे हैं नेगेटिव स्ट्रेस, और जो ये पॉजिटिव स्ट्रेस ले रहे हैं उनका पैशन था, वर्कहॉलिक है, वो काम करना चाहते हैं, वो सोच रहे हैं कब ये खत्म होगा और मैं कब काम करूंगा। तो गवर्नमेंट ने वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया। अब तो सबको काम तो करना ही है, घर से काम करना है। घर से काम को भी अगर आप मजे में लेंगे तो वो काम है, और अगर स्ट्रेस में लेंगे तो वो काम नहीं है, तो वो स्ट्रेस है। तो आप ये देखिए कि जिस चीज की आपको सच में आदत पड़ चुकी है, जो आपकी अच्छी लेजर टाइम है, जैसे आप अपना वक्त बिताते थे वैसे ही अगर आप बिताओगे तो आपको महसूस भी नहीं होगा कि कुछ गलत हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है जो होना नहीं चाहिए। और मेरी सोच ये कहती है कि ये हो भी रहा है तो बहुत अच्छे के लिए हो रहा है, जो भी हो रहा है। एटलीस्ट हम अपने मकान को घर तो बना रहे हैं, नहीं तो हम तो 4 दीवारी में बैठे हुए, बस कुछ सोल्स थी जो आते थे, पेइंग गेस्ट की तरह खाना खाया, अगले दिन के लिए फिर तैयार हो गए। हमारे रूटीन में फैमिली बॉन्डिंग था ही नहीं। और वो अब कितना मजा आ रहा है लोगों के साथ, बच्चों के साथ खेल के। आप सब मुझे लगता है अपने बचपन में आ गए होंगे और खूब सारी एक्सपीरियंसेस अपने बच्चों को सुना रहे होंगे। नहीं सुना रहे तो शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा उपकार होगा आपका उन बच्चों पे। अपनी जैसे जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो क्या क्या होता था, ऐसी बातें शेयर करिए, मजा आ जाएगा दोनों को, बच्चों को भी और आपको भी, क्योंकि यू विल बी रीलिविंग। सो नाउ लाइफ ऑलवेज डिमांड अ चेंज। जो हर वक्त हो रहा था वो चीज हमें हमेशा नहीं करनी है, कुछ अलग करना है, कुछ स्टैंड आउट होकर रहना है। तो ये टाइम खुदा ने, भगवान ने हमें इसीलिए दिया
कि बहुत भाग लिया आपने जिंदगी की दौड़ में, बहुत ऐसे रास्ते पर चल पड़े आप जहां से पीछे आना बड़ा मुश्किल हो रहा था, जहां पीछे आकर बैठकर कुछ शांति से कुछ सोचना था अपने बारे में। वो समय हमें वापस ऐसी जिंदगी में लाने की कोशिश कर रहा है अब, जिसमें हम बहुत ही सुखी और कंटेंटेड पीपल बनना चाहते हैं, और बन भी गए हैं। काफी जिन्होंने कर लिया ना, वो सच में लॉकडाउन का फायदा उठा रहे हैं। दे हैव एक्चुअली नॉक डाउन दी लॉकडाउन। उन्होंने लॉकडाउन को तो खत्म ही कर दिया, मजे ले लिए। पता नहीं कितने लोग तो शेफ बन गए। आई एम टॉकिंग अबाउट मेल्स स्पेसिफिकली। कितने लोग शेफ बन गए, कितने लोग अपने बहुत पुरानी आदत जो थी उनकी म्यूजिक की, उसको उन्होंने रिवाइव कर लिया। कुछ लोगों ने एक्सरसाइज को अपना पैशन बना लिया। कुछ लोगों ने बच्चों से बात करने का एक नया अंदाज ढूंढ लिया। कुछ लोगों ने खुश रहने के लिए नए नए तरीके, चाहे जो फूडी है उसने नए नए से तरीके, रेसिपी सब ढूंढनी शुरू कर दी। सो लुक एट इट, आप जैसे हैं, जैसे खुश रहना चाहते हैं, आपने खुद रास्ते ढूंढे। अब यही सब तो पहले करना था, और ये नहीं हो रहा था, इसीलिए सब दुखी थे। आज सब कुछ अपने मन की कर पा रहे हैं, तो सब ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड है, सभी खुश हैं। और खुश रहना इतना आसान है, ये तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। My family is my life, and the child says my dad is my hero, my mom is everything for me। ये सब सिर्फ किताबों में लिखने की चीजें नहीं है, ये जिंदगी को जीने की चीजें हैं। और ये सब बच्चों को भी अभी पता चल रहा है कि जब हम मम्मी पापा के साथ बैठते हैं तो वो टाइम ऐसे स्लिप ऑफ होता है, पता ही नहीं चलता। और हमने कोशिश की है कि हम स्कूल को बंद होने के बावजूद भी आपके घरों में स्कूल खोल दें, और टीचर्स ने खोलने की पूरी कोशिश की है। सुबह सुबह 9 बजे फर्स्ट सेकंड के बच्चे यूनिफॉर्म पहनकर, आई कार्ड लगाकर बैठ जाते हैं ऑनलाइन क्लास के लिए। लवली टू सी देम। आप तो बहुत मैच्योर हो, आप तो बड़े हो, आप लोग समझते हो और अच्छे तरीके से पढ़ भी रहे हो। आपको पता भी नहीं है हर क्लास में मैं भी होती हूँ, आपको नहीं मालूम है, मैं आपकी सारी चीजें देखती हूँ, आप क्या कर रहे हैं, तभी अगली क्लास के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। तो ये मत सोचना कि आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी जो आप करते हैं आप पकड़े जाते हैं, और फिर हम उसको चेक करते हैं। मेरा काम है ऑब्जर्व करना, वो मैं कर रही हूँ। टीचर का काम है पढ़ाना, वो टीचर पढ़ा रहे हैं। तो कहाँ स्कूल बंद हुए? पेरेंट्स का काम था आपका ध्यान रखना, वो आपका ध्यान रख रहे हैं। तो कोई स्ट्रेस है ही नहीं किसी को। अब सब अपने अपने तरीके से ऐसे रम गए हैं कि सबको ये चीज, ये जिंदगी, ये जीवन इतना सुहाना लगने लगा है। पोल्यूशन इतना कम हो गया है, बाहर भी इतना अच्छा लगता है। अगर आप अपने कॉरिडोर में भी खड़े हो जाएं तो नया अंदाज होता है। देखो, सब दुनिया बदल रही है, और दुनिया आपको सिखा रही है कि आप एक प्योर सोल हो, और प्योर सोल की तरह इस लाइफ को, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करो। कोई गलत चीज, कोई नेगेटिविटी आपके आसपास भी नहीं आनी चाहिए। आपका ऐसा ऑरा बन जाना चाहिए। ऑरा इज द एनवायरमेंट। हमारे आसपास एक चक्र होता है, वो बना है हवा का चक्र, और वो हवा कैसी है ये जानना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब हम बहुत स्ट्रांग होते हैं तो आउटसाइड आइडेंटिटी हमें तंग नहीं कर सकती, हमें छू नहीं सकती। आप बच्चों ने रामायण भी देखी, महाभारत भी देखा, और मेरे ख्याल से आपने उत्तर रामायण भी देखी होगी। उत्तर रामायण में भी आपने देखा कि आपके जितने बच्चे कैसी बातें करते हैं। और सीखने के लिए अगर आप कहें तो मुझे लगता है कि एक बार क्या, अगर हम जितनी बार हम रामायण महाभारत देखेंगे उतनी बार कुछ नया सीखेंगे। हम किसी भी एज में हो, आपके पेरेंट्स की तरह अगर हम 30 इयर्स के हैं, 40 इयर्स के हैं, तब भी हमें रामायण में कुछ नया मिल जाएगा। और आप अगर अभी 10 इयर्स के हैं, 12 इयर्स के हैं, तब भी आपको कुछ ना कुछ रामायण में मिलेगा। 1 or 2 थिंग्स, मंत्रास, वो सब अगर हम नोट कर लें तो हम अपनी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस कर सकते हैं। We all are impressed by the character of Rama, Lord Rama. Lord Rama became Lord
Why? Because he faced challenges for 14 years in exile. He became a man over there. मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा गया राम को? क्योंकि उन्होंने आपको, हमको जीना सिखाया। एक ह्यूमन बीइंग बनकर वो सब जानते थे कि आगे क्या होने वाला है, और फिर भी इतनी अच्छी मुस्कान चेहरे पे रखकर कठिन से कठिन काम कैसे आसानी से करना है, ये जो भी वो बोलते थे, जो भी उन्होंने किया, वो किसी के साथ भी देख लीजिए आप, रिलेशन भाई के साथ हो, पिता के साथ हो, माँ के साथ हो, या पत्नी के साथ हो, या गुरु के साथ हो, सभी रिलेशंस को इतना अच्छा निभाया कि अगर आप एक का भी रिलेशन समझ लेना उनसे कि कैसे उन्होंने निभाया, तो आपकी लाइफ में वंडरफुल चेंजेस आ जाएंगे। आप ऐसे बन जाओगे जैसे आपको सभी देखना चाहते हैं। ये बात बच्चों के लिए है और बच्चों के मम्मी पापा के लिए भी है, क्योंकि उनको भी एक पुरुषोत्तम राम की तरह ही रहना है और मम्मियों को सीता की तरह। हर चीज तो राम, सीता और बच्चों को लव कुश की तरह। कितनी अच्छी बातें लॉकडाउन पीरियड में डीडी चैनल पर हमने देखी, बताइए, जो चैनल हम कभी चलाते नहीं थे। तो अच्छी चीजें देखने के लिए उसकी क्वालिटी को नहीं देखना है। The same thing our honorable prime minister has also said, skill India। हमें अपने स्किल्स को देखना है, ब्रांड पर मत जाओ। तो अब आपको साथ साथ मैं बताती जाऊंगी कि happy people have few qualities and those qualities are always seen by others and anybody can judge that this person is very happy, I think, very contented, and this person knows how to carry forward the things, how to come across the challenges। ये उनको पता चल जाता है। किनको? देखने वालों। करने वाले को तो जो मजा आ रहा है वो आ ही रहा है। सो व्हाट आर द साइंस दैट शो दैट यू आर हैप्पी? जो भी हैप्पी होगा वो कभी भी शो ऑफ नहीं करेगा, सिंपल होगा। सिंपल पीपल आर ऑलवेज हैविंग हायर थिंकिंग, ग्रेट थिंकिंग। हमें अपनी थिंकिंग को बढ़ाना है, अपने शब्दों को, अपनी वोकैबुलरी को ऐसे नहीं बढ़ाना कि वो किसी का नुकसान कर दे। हमने साथ साथ रामायण के महाभारत देखी है। अगर हमारे शब्द खराब हो जाएं तो इतना बड़ा युद्ध का रूप ले लेते हैं, और अगर हमारी मुश्किलें हमारी पॉजिटिविटी से छोटी हो जाएं तो वो रामायण बन जाती है। सो व्हाट आई थिंक, दोनों चीजों को साथ साथ देखने के साथ आपको पता चला होगा कि इम्पोर्टेंट क्या है। किसी की बुराई करना, किसी के बारे में नफरत से सोचना, किसी को नीचा दिखाना, किसी का हक लेना, किसी को तंग करके उसके साथ कुछ ऐसी बातें करना कि उसको गुस्सा दिलाया जाए, उसके साथ लड़ाई की जाए, वो महाभारत है। और इधर आपने राम जी को देखा कि कितने भी कहर आ जाए, कितनी भी परेशानियां आ जाए, हम हंसते हंसते निभाएंगे। आपने पूरी रामायण में श्री राम के चेहरे पे जो मुस्कान देखी, वो मुस्कान कितनी कंटेंटेड थी, कितनी सेटिस्फाइड थी। आप लोगों ने हैप्पी लिखा, सेटिस्फाइड लिखा, कंटेंटेड लिखा, तो सभी राम है, सबके पास वो चीज है, लेकिन हम यूज नहीं करते उसे। हम बहक जाते हैं, हम समझ नहीं पाते कि दूसरा हमारे लिए क्या कह रहा है। एंड दिस इज फॉर ऑल। सबसे पहला स्टेटमेंट फॉर अ हैप्पी मैन इज डोंट शो ऑफ। ये दिल से आपको रखना है अपने अंदर, अपनी आदत बनानी है कि मुझे शो ऑफ नहीं करना, जो बच्चे करते हैं इस उम्र में आकर। आपकी उम्र बड़ी कच्ची उम्र है बेटा, ना आप बड़े हैं ना आप छोटे हैं, तो आप तो बस ऐसे थ्रेशोल्ड पे खड़े हैं कि जरा सा पैर फिसला तो गए, और जरा सा कमांड कर लिया आपने अपने आप को तो जन्नत। तो सोच लो कौन सी जगह जाना है, कितना अच्छा बनकर दिखाना है। अपने आप को भी तो आपने प्रोमिसेस किए हैं, यू हैव ड्रीम बिग। हमने जो आपके साथ ये काम किया था कि आप अपना पूरा काम, अपने आप को खुद जजमेंट करें कि आप कितना टारगेट अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो 40% ही हो, कोई बात नहीं। जब हम जीरो से शुरू होते हैं तो हम धीरे धीरे तो ऊपर जाएंगे, एकदम से पहले आखिरी सीढ़ी पे कैसे चढ़ जाएंगे, कोई बात नहीं। छोटे छोटे ड्रीम्स आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाते हैं। आपका सक्सेसफुल होना अगर इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तभी तो आपके ड्रीम्स काम आएंगे
और अगर आपका सक्सेसफुल होना आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, दूसरों के लिए मायने रखता है, पापा क्या कहेंगे, मेरी परसेंटेज अच्छी नहीं आई, मेरे मॉम क्या कहेंगी, घर में ग्रैंडपा है वो मेरे को बोलते हैं कि आप कितने परसेंट आने चाहिए, व्हाई आर यू वेटिंग, कोई और आपको बताए आपकी क्या आना चाहिए और क्या नहीं आना चाहिए। नहीं, यू आर एडल्ट नाउ। अगर ऐसे बात करनी है तो मैं आपको एडल्ट कहूंगी कि आप एडल्ट हैं, क्योंकि आप समझ पाते हैं इस उम्र में कि हमें करना क्या है। कभी भी आपके पास कोई ऐसी बात हो जो आप नहीं समझ पा, अच्छे दोस्त से, और सबसे अच्छा दोस्त इस दुनिया में बच्चों मम्मी पापा के अलावा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। कभी गलती से भी किसी और दोस्त को ये मत सोच लेना कि इससे शेयर कर लूंगा मैं, लेकिन मम्मी पापा से नहीं करूंगा। नहीं, अगर सच में सच्चे रास्ते पे जाना है तो मम्मी पापा से ही बात करनी होगी। अब मम्मी पापा के लिए कि आपको अपने बच्चों को अगर अच्छा बनाना है तो उन पे फेथ रखना होगा और उनसे खूब सारी बातें करनी होगी, और ये खूब सारी बातों के लिए ही ये वक्त को यूटिलाइज करो, उनको समझो, उनको जानो। मैं जानती हूँ कि लॉकडाउन पीरियड में अगर हमारे अच्छे पेरेंट्स बच्चों को अच्छा बना लेंगे तो सबसे अच्छा फ्यूचर हो जाएगा इंडिया का, क्योंकि इन बच्चों के पास, जिनके पास अभी जो एडोलेसेंट एज में हैं, ये तो बेचारे बहुत ज्यादा परेशान हैं, इनको दोस्त खींचते हैं, इनको समाज खींचता है, इनको पता नहीं क्या चाहिए दुनिया में कि ये इतने कॉम्पिटिटिव हो गए हैं अपने आप ही। एडोलेसेंट एज में तो पेरेंट्स का ये हाल हो जाता है कि पेरेंट्स कहते हैं पता नहीं मेरे बच्चे को क्या हो गया, ऑल टुगेदर चेंज। वो चेंज बहुत अच्छा है, वो चाहिए, लेकिन अच्छाई की तरफ ले जाओ। आपको भी चेंज हुआ था, वो आप भी ऐसे बदले थे, आप भी एकदम मैच्योर हुए थे, एकदम एडल्ट हुए थे, लेकिन उस एडल्टहुड को चलाने के लिए आपसे ज्यादा बेहतर कहानियां किसके पास होंगी उसको सुनाने के लिए? बोलिए, नहीं होंगी ना। तो आप ही सुनाएंगे, आप ही उसे बनाएंगे, और बार बार अपने एक्सपीरियंस से, कुछ आजकल के एक्सपीरियंस से। एक चीज और, जनरेशन गैप इज नॉट अ स्ट्रेस, इज नॉट अ प्रॉब्लम। हमने अक्सर सुना है कि पेरेंट्स ये बोलते हैं कि आजकल के बच्चे तो ऐसे हैं, आजकल के बच्चे ऐसे होते तो कभी लिखते कंटेंटेड, कभी लिखते हैप्पी, कभी लिखते काइंड। आजकल के बच्चे क्या अपनी मम्मी से जाकर कहते कि मम्मा आप बहुत अच्छा शाही पनीर बनाती हो, मुझे ना, मेरा ना पेट नहीं भरता एक टिफिन से, मुझे 2 टिफिन देना, और वो दूसरा टिफिन ले जाके अपने दोस्त को दे देना, उस दोस्त को, उस साथी को जिसे हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं लगता। व्हाट अ फ्रेंड, व्हाट अ काइंडनेस। इसमें फ्रेंड इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें काइंडनेस इंपॉर्टेंट है, इसमें वो ह्यूमन बीइंग इंपॉर्टेंट है, वो बच्चा इंपॉर्टेंट है जिसकी सोच इतनी अच्छी है कि एक मेरा साथी भी है ऐसा जो खा नहीं पा रहा, मुझे उसके लिए खाना ले जाना है। और ऐसे बच्चे को आकर थोड़ा सा झूठ बोला आपने, कोई बात नहीं, अच्छे काम के लिए बोला, कोई बात नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और आने के बाद आप मम्मी से फिर जरूर हक करें और मम्मी को बोलें कि मम्मा आप सच में बहुत अच्छा खाना बनाते हो, आज मेरे दोस्त ने खाया तो वो आपकी बहुत तारीफ कर रहा था, पता है उसको अच्छा खाना नहीं मिलता, इसलिए आज मैंने उसको थोड़ा सा शेयर किया और उसको बहुत अच्छा लगा। मम्मा आप पूरी बात उस तरीके से नहीं बता रहे जिस तरीके से थी, लेकिन फिर भी ये झूठ अच्छा है, क्योंकि इस झूठ में मम्मा के लिए थैंकफुलनेस है, इस झूठ में मम्मा के लिए मोटिवेशन है। तो ऐसा जब आप करेंगे तो पता है मम्मा क्या बोलेंगी, आंखें भी भर आएंगी उनकी, अच्छा बेटे आपने शेयर किया, सच ए गुड चाइल्ड, कितने अच्छे बच्चे हो आप, और आपके फ्रेंड को अच्छा लगा, कोई बात नहीं मैं आपको फिर बना दूंगी और आप लेके जाना। और कभी आप ना भी बोलो ना उनको कि बना दो, तो मम्मी अगले दिन कहेगी नहीं बेटा मैंने ज्यादा बना दिया, आप अपने उस फ्रेंड को जरूर खिलाना जिसे खाना नहीं मिलता। सो दिस इज व्हाट हैप्पीनेस, दिस इज व्हाट काइंडनेस, व्हिच इज मोर देन इन्फेक्शियस देन दिस कोरोना। सो मैं तो कहूंगी कि ये कोरोना नहीं, कुछ करो ना, ऐसा करो, ये कोरोना तो भाग जाएगा, ये कुछ भी नहीं है। 20 सेकंड तक हाथ धो लो, मास्क पहन लो, बस ये सब तो अब हमारी जिंदगी है, कोई बात नहीं, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अच्छे तो हम पहले भी थे, लेकिन ये सब करके हम फिजिकली अपने आप को फिट रखेंगे, लेकिन मेंटली फिट कैसे रखेंगे?
मेंटली फिट रखने के लिए, तो फिर वही चीजें काम आएंगी, फिर से हमें वही याद करने पड़ेंगे पाठ जो हमें लगता था कि ये तो पुरानी बातें हैं, लेकिन वही चीजें काम आएंगी। और अपने माइंड को फिट रखने के लिए सबसे ज्यादा अच्छा है जॉइंट फैमिली में अपने दादा दादी, नाना नानी, अपने से बड़ों, जितने भी बड़े लोग रहते हैं उनसे बहुत प्यारी प्यारी बातें करना। आज सभी पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं और नहीं भी रहते तो अपने दादा दादी को आज वीडियो कॉल करके थैंक्स कर देना। सबको करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो आपको देना है वो गिफ्ट प्राइसलेस है। वो आपके बच्चों को जब संभालते हैं, और अब आप देख रहे होंगे कि कैसे संभालते थे, हैट्स ऑफ टू देम, शत शत नमन उनको मेरी तरफ से भी, कि जो बड़े हमें वैल्यूज देते हैं वो देने के लिए वक्त चाहिए। और हम इस जनरेशन के होकर वक्त नहीं दे पाते अपने बच्चों को, तो बाद में बहुत फील करते हैं, लोनसम हो जाते हैं बच्चे। जिन बच्चों को घर में वैसी वैल्यूज, वैसा क्वालिटी टाइम नहीं मिलता, शायद वही दोस्ती के चक्कर में इधर उधर की बातों में आ जाते हैं, बहक जाते हैं कभी कभी। लेकिन अच्छा है सबको जानना कौन कैसा है, पर जानने के बाद अगर डिसीजन अच्छा नहीं लिया तो बेटे खराब हो जाएगा सब कुछ। जब आप पहचान भी गए कि वो बच्चा गलत है और फिर भी आप उसकी बात मान रहे हैं, तो बताओ गलत कौन है, वो या आप? वो तो है ही, दैट इज हिज कार्मिक अकाउंट, बट आपका अपने कर्म कैसे हैं? आप भी गलत हो गए। तो कम से कम हमें ये सोचना है कि वी आर ऑल पॉजिटिव पीसफुल सोल, और हम घर में जितने लोग रहते हैं सब सोल्स हैं। एक दूसरे के साथ ये व्यवहार रखें कि सब लोग, जितने भी लोग हमें मिलते हैं, घर की भी बात छोड़िए, एवरीबडी, जब हमने एक इंसान ने दूसरे इंसान को एक प्योर सोल समझ लिया तो वो उसके साथ उसका इंटरेक्शन पॉजिटिव ही होगा। आपने देखा कि राम महाभारत में और रामायण में दोनों जगह जब लड़ाई हुई थी तो इधर का ताकतवर तीर जब आया तो इधर से भी कम नहीं आया। दोनों आपस में टकराए और दोनों में से किसी को कोई असर नहीं किया। तो ऐसा क्यों नहीं? अगर एक तरफ से नेगेटिव आ रहा है, एक तरफ से नेगेटिव आके दूसरी तरफ से पॉजिटिव आएगा तो वो उसको टच करेगा ना। दूसरा भी नेगेटिव है या ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो बीच में टकरा के खत्म हो जाएगा। नेगेटिव वाले को अपने पास नहीं आने देना। इतना स्ट्रांग बनना है कि दूसरा कुछ भी बोले, आपके दोस्त, आपके समाज में और कोई कुछ भी बोले, आपको पता है अंदर से यू हैव आस्क्ड योरसेल्फ, ये अच्छी बात नहीं है, मुझे नहीं करनी, हमारे घर का ये संस्कार नहीं है, तो मुझे नहीं करना। स्ट्रांगली नहीं करना। जितने बच्चों ने स्ट्रांग लिखा था वो फंस गए। अब ये चैट मेरे पास रिकॉर्डेड रहेगी और मैं समझ जाऊंगी कि इतना स्ट्रांग बच्चा जो है, और जिसने वर्सेटाइल लिखा मैं उसको भी समझ जाऊंगी कि कितना वर्सेटाइल है वो, एक बारी में कितनी चीजें सोच लेता है, तो वो गलत चीज क्यों सोचेगा। और हैप्पी लिखने वाले तो फंस ही गए। जिन्होंने हैप्पी लिख दिया वो तो समझो फंस गए कि अब उनको खुश रहना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अगर खुश नहीं रहेंगे तो हमें पता चल जाएगा वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो रहे हैं, इसीलिए खुश नहीं है। सो हैप्पी पीपल हैव first important thing, they don't show off, they are very very simple people. Simple people will always have a strong thinking, a high thinking. High thinking policy जो होती है ना वो आती ही तब है जब आपका माइंड बहुत पीसफुल होता है, बहुत अंदर से आप बहुत साफ दिल के होते हैं, तभी आप हाई थिंकिंग कर सकते हैं। नहीं तो फिर समाज की थिंकिंग से ओवर पावर हो गए अगर आप, तो काम खराब हो जाएगा। ठीक है। और क्या करते हैं जो हैप्पी पीपल होते हैं? दे टॉक वेरी लेस, दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेंट। वो ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, और उसके बाद लर्न डेली, दे हैव अ पॉइंट टू लर्न। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ डू वी लर्न डेली? इट्स नॉट academic learning. Even a rickshaw wala can do that, even a vendor can do that, even a person who has never gone to school can do this learning, because this learning is from the teacher life, LIFE. So what is it? Life जैसी टीचर से कुछ सीखना है। और लाइफ क्या है?
मांगनी नहीं पड़ रही ना, कहीं से मिल गई है, सौगात मिली है, भगवान ने दिया है, तो हम उस लाइफ से ही क्यों नहीं सीखते? एवरी मोमेंट हमें कुछ सीखना है। एवरी मोमेंट सीखने के बाद हमें ये जानना है कि अगर हमने कुछ ऐसा करना है जो गलत है, तो वो हम अपने आप को खुद ही रोकेंगे, दूसरा नहीं बताएगा कि मत करो। ओके, सो लर्न डेली मीन्स एवरी डे यू हैव टू लर्न सम गुड एक्ट, सम गुड थिंग, एटलीस्ट। कैसे? पढ़ के नहीं, जरूरी नहीं है कि पढ़ाई से आएगी, वो बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली और आप कह रहे हो लर्न डेली, नो, इट इज नॉट पॉसिबल। लर्निंग डेली मीन्स यू हैव टू लर्न लाइक अ पर्सन हु ऑलवेज is so observing that he never repeat his mistake. This is called learn daily. एक बार मिस्टेक होगी कोई बात नहीं, मिलियन बार टाइम्स भी आप करोगे मिस्टेक, लेकिन वो जो एक मिस्टेक है ना, जिसको आपने समझ लिया था कि ये मेरी गलती थी, वो दोबारा नहीं करनी। बस अगर वो दोबारा नहीं की तो फिर क्या बात है। ये बात सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, पेरेंट्स के लिए भी है। पेरेंट्स भी कोई गलती कर जाएं और उससे कुछ सीख जाएं तो क्या बात है, क्योंकि वो तो सिखाने वाले हैं, वो तो टीचर है सबसे बड़े घर में, वो तो काउंसलर है। आजकल काउंसलर्स की जरूरत इसीलिए पड़ रही है क्योंकि क्वालिटी टाइम नहीं दे रहे, बच्चों का फेथ नहीं हो रहा, और बच्चे हमसे शेयर नहीं करते और हम उनसे बात नहीं करते। सो वी हैव टू लिसन देम, वी हैव टू अंडरस्टैंड देम। बच्चे आपका दोस्त बनेंगे तब जब आप बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर वो जनरेशन गैप वाला राग नहीं गाना है। थोड़ा सा आपको उनके जैसा बनना है और थोड़ा उनको अपने जैसा बनाना है, लेवल बराबर रखना है। बार बार ये बोल दें कि हम जनरेशन गैप है, आजकल के तो बच्चे ही ऐसे हैं, तो वो चीज ठीक नहीं होगी। उसमें हमें लगेगा कि बच्चा ठीक होना मुश्किल है और हमें भी ठीक होना, हमें भी नेगेटिव ही हमेशा उसके लिए हम सोचते रहेंगे कि वो ठीक नहीं हो सकता। मैं बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ, मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ, मैं उससे बहुत बार बात नहीं है, वो करते ही नहीं है। बच्चे सुन रहे हैं अब सारी बात, ऐसा होता है बेटा, आपके पेरेंट्स इस तरह की कंप्लेंट से प्रॉब्लम बहुत होती है उनको, और उनको लगता है यही उनके लिए स्ट्रेस है। फिर मैं ये कहूंगी कि बच्चे ऐसा ना करें, इसके लिए बच्चों की काउंसलिंग की जरूरत है। जैसे मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपके पेरेंट्स भी ऐसे बात करेंगे। आई एम प्रेजेंटिंग वन ऑफ द एग्जाम्पल, मैं ऐसे एग्जाम्पल बन के बात कर रही हूँ कि देखो मैं जब प्यार से बात कर रही हूँ तो आप भी कर सकते हो, और बच्चे प्यार से ही समझते हैं। आप कोई काम चोरी छुपे बच्चे नहीं करना, क्योंकि पेरेंट्स के लिए नए नए काम मत निकालो भाई, आप खुद ही अच्छे बन जाओ और उनके साथ साथ हर समय बातें करते रहो। जब भी कुछ करने को दिल करे, शेयर करने को, उनके साथ शेयर करो। और मम्मा अगर आपकी कहें कि जाओ मेरे पास बात करने का टाइम नहीं है बेटे, आपके पास बहुत टाइम है, आप अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो, मेरे पास टाइम नहीं है, तो मुझे आके रिपोर्ट कर देना। मुझे मालूम है आपके पेरेंट्स ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि वो एक ऐसी एनर्जेटिक जनरेशन के लोग हैं जो ये समझते हैं कि बच्चों को सिर्फ और सिर्फ आप ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। तो बहुत अच्छी फैमिलीज हैं और बहुत अच्छे लोग हैं, फिर भी हम कुछ बाहर ढूंढ रहे हैं, हमें घर में ही ढूंढना है। एक छोटी सी बात जो मैंने आपसे कही कि हमने अपने मकान को घर बनाना है, तो इससे बड़ी कोई और बात नहीं हो सकती। और आप लोग सब समझते हो कि घर बनाने के लिए प्यार और एक पॉजिटिव थॉट के अलावा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। सो टॉक लेस, लर्न डेली, और उसके बाद क्या करना चाहिए आपको? काइंडनेस भी बता दिया, हेल्पिंग अदर्स, एंड देन यू हैव टू रिजॉयस द मोमेंट्स, लाफ मोर, बहुत खुल के हंसना है, एक दूसरे के साथ जोक्स क्रैक करो, अपने एक्सपीरियंसेस पे ही हंसो, कुछ पुरानी यादों, कुछ मेमोरीज पे हंसो और उनसे कुछ सीखो। हिस्ट्री से हम लर्न करते हैं बहुत कुछ, लेकिन हिस्ट्री को अगर कुछ नेगेटिव चीज हुई है पास्ट में तो उसको लेके बैठे नहीं रहना है, हमें सोचते नहीं रहना कि ये हो गया, वो तो है ही ऐसा, वो तो है ही ऐसा। एक बार की गलती से किसी को हम नहीं जान सकते, समझ रहे हैं ना। और अगर हम किसी का अपमान करते हैं, किसी की इंसल्ट करते हैं, तो जाने अनजाने में हम अपना सम्मान खो देते हैं, हमारी अपनी इमेज डाउन हो जाती है। इसलिए हमें ऐसा काम नहीं करना, और पास्ट को लेकर बैठे नहीं रहना है। फॉरगेट इट, फॉरगिव एंड फॉरगेट, छोड़ दो, उस बात पे गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे वो बच्चे हो या आपके पेरेंट्स हो या आपके भी पेरेंट्स हो। पुरानी बातों को स्वाहा, खत्म कर दो, भूल जाओ। नहीं भूलोगे तो नई पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जा सकते।
फॉर मी, अब ध्यान से सुनना सभी, पास्ट इज अ वेस्ट पेपर। ठीक है, मैंने पास्ट को वेस्ट पेपर बोला है। वेस्ट पेपर का मतलब क्या है? आप लोग बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बोलते हो ना, तो वेस्ट पेपर से कितनी क्रिएटिव चीजें बनाते हो आप, कितनी इनोवेटिव चीजें बनाते हो। सो दिस इज व्हाट पास्ट इज नोन एज वेस्ट पेपर। वो वेस्ट पेपर है, उससे आपने जो सीखना है सीख तो लो, उसके बाद फिर उसको नए तरीके से इनोवेट कर लो। दिस इज व्हाट पास्ट टेल अस। और प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट इज अ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर सबसे बड़ी चीज है अपडेशन की, अपकीपिंग की, अवेयरनेस की। आज की दुनिया में क्या हो रहा है मुझे वैसा समझना है, वो सब चीजें मुझे मालूम होनी चाहिए, वो ऑप्शंस मुझे मालूम होने चाहिए, तभी मैं अपने आप को ऊंचा कर सकता हूं। और उसके बाद अब आता है फ्यूचर। फ्यूचर इज ए क्वेश्चन पेपर। पता नहीं, उसका तो गैस भी नहीं कर सकते। फ्यूचर का हम कोई गेस नहीं कर सकते कौन सा क्वेश्चन आएगा। फ्यूचर इज अ क्वेश्चन पेपर फुल ऑफ चैलेंजेस, और अगर हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, तैयार नहीं होंगे, तो क्या होगा जानते हो? तो हमें पछताना पड़ेगा कि हमने अपने आप को प्रिपेयर क्यों नहीं किया। और प्रिपेयर भी सिर्फ एग्जाम से पहले वाला प्रिपरेशन नहीं है, क्योंकि फ्यूचर है, फ्यूचर का तो पता ही नहीं ना कौन सा क्वेश्चन आएगा, हम प्रिपेयर क्या करें। इसलिए आप लाइफ, थ्रू आउट योर लाइफ अपने आप को प्रिपेयर करिए, और प्रिपेयर करेंगे अगर अच्छे से। फ्यूचर इज अ क्वेश्चन पेपर, सो रीड एंड राइट केयरफुली, अदरवाइज लाइफ विल बी अ टिश्यू पेपर जिसको रीयूज भी नहीं करते। समझ गए? सब समझ गए होंगे मुझे लगता है। नहीं समझे हैं तो भी ये बात ध्यान से समझना कि मैम ने पास्ट को वेस्ट पेपर कहा था और प्रेजेंट को न्यूज़पेपर क्यों कहा था, और फिर फ्यूचर को क्वेश्चन पेपर क्यों कहा था। क्योंकि फ्यूचर इतना अनसर्टेन है, हमें नहीं पता क्या होगा। क्या किसी टीचर ने कभी सोचा था कि हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे? किसी स्टूडेंट ने कभी सोचा था कि मैं ऐसे फोन के पास बैठ के पढ़ूंगा? क्या ये सब चीजें किसी ने डिपिक्ट की थी कभी, प्रिडिक्ट की थी कभी? नहीं, लेकिन हुआ ना। सो दिस इज व्हाट द फ्यूचर इज। अभी भी फ्यूचर में स्कूल कब खुलेंगे, कैसे खुलेंगे, कैसे चलेंगे, क्या क्या करना होगा, लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। हमारी लॉबी, प्रिंसिपल्स की लॉबी, मैनेजर्स की लॉबी, ये सब काम कर रही है, रोज R&D हो रहा है। हम दिन रात इस चीज पे लगे हुए हैं कि कोई ऐसा कारण, कोई चीज ऐसी हो जाए, सब कुछ करके देखने की कोशिश में लगे हुए हैं कि क्या चीज होगी। बहुत बड़े बड़े लेवल्स पे डिस्कशंस हो रही हैं। डोंट वरी। सो पढ़ाई की चिंता तो बच्चों करो मत, ना पेरेंट्स ना बच्चे, मस्त रहो। जब तक स्कूल नहीं खुलता पढ़ाई हमें करने दो, बस हम पढ़ाई करेंगे। आपको कैसे पढ़ाना है, हम तो सिलेबस भी कम कर देंगे आपका, खत्म। पढ़ाई तो होती रहेगी, पर जो जिंदगी की पढ़ाई है वो मैं पढ़ाना चाहूंगी आपको जून में भी। वो मैं चाहूंगी कि आपके साथ जुड़े रहें, कभी पेरेंट्स को, कभी बच्चों को, जैसा भी आप टॉपिक बताएंगे, जो भी चीज आप बताना चाहेंगे, हम आपके साथ साथ करते जाएंगे। और अभी भी मैं चाहूंगी कि 30th तक आपको पढ़ाएं। अगर आपको लगे कि आपने नहीं पढ़ना है तो आप अपने सजेशंस में लिख सकते हैं, वरना मेरी अपनी इच्छा है कि आपके साथ जुड़े रहकर हमें भी एनर्जी मिलती है और हम भी काम करते हैं। अपनी टीचर्स के लिए एक बार कुडोज लिखिए, बिकॉज दे आर वर्किंग नाउ डे एंड नाइट। ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है कितना बड़ा, इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं सब। पेरेंट्स के इतने अच्छे अप्रिशिएशन आ रहे हैं कि हमारा बच्चा पढ़ता है, बहुत अच्छा लगता है, अच्छी पढ़ाई हो रही है। किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन उन्होंने लर्न किया ना बेटे। ये स्किल्स उनको नहीं आते थे, बट सबने सीखे। तो ये आपके सामने आपके गुरुओं ने ये दिखा दिया कि कुछ भी चैलेंज हो हम कर सकते हैं। ओके, जस्ट टू मेक यू हैप्पी दे आर टेकिंग दिस बर्डन, और उस बर्डन को हैप्पीली ले रहे हैं, बहुत पैशन के साथ ले रही हैं वो भी। तभी तो नई नई चीजें आपके सामने आ रही हैं। कभी वो वीडियो बना देते हैं, पता नहीं कैसे कैसे टीचर्स ने फोन को कैसे रखना है, क्या करना है, इतनी R&D की, अपने रूम्स को कैसे कन्वर्ट कर दिया एक क्लासरूम में। लवली आइडियाज। सो फ्रॉम माय साइड आल्सो कुडोस टू ऑल द टीचर्स। डॉक्टर्स आर सेविंग आवर लाइव्स, बट टीचर्स आर शेपिंग आवर लाइव्स। वो हमारी लाइफ को बना रहे हैं किसी भी तरीके से। सो टीचर्स तो मुझे लगता है बहुत सारा अपलॉड लेने के लिए तैयार बैठी हैं। रीजन इज दिस, अगर किसी डॉक्टर को कहा जाए
कि आप क्या प्रेयर करते हैं। तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि हम तो भाई यही प्रेयर करते हैं कि बहुत सारे लोग बीमार हों, मेरा क्लिनिक भरा रहे, ऐसा सोचता हूं मैं, तभी तो मैं कमा पाऊंगा। और एक लॉयर क्या सोचता है, बहुत सारा क्राइम हो, मुझे भी बहुत सारे क्लाइंट्स मिलते रहे और मेरा काम चलता रहे। जानते हो एक टीचर क्या सोचती है? एक टीचर बेचारी एग्जाम्स में भी हमेशा हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरा रिजल्ट खराब नहीं होना चाहिए, मेरे पढ़ाए हुए सारे बच्चे XYZ कोई भी एक बच्चा भगवान उसके भी एटलीस्ट 33% दे देना, पास हो जाए। इससे ज्यादा प्यार कौन करेगा आपको? कोई करेगा? ऐसे टीचर्स होते हैं, ऐसे गुरु होते हैं। वो आपने रामायण में देखा है। मैंने इसीलिए आपको बार बार रामायण का एग्जाम्पल दिया कि गुरु क्या चीज है और गुरु की इज्जत कैसे की जाती है, ये भी रामायण ने सिखाया है। और आप सच में बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे देश में रहते हैं, सेंट्स की धरती है ये, और भारतीय स्कूल में पढ़ते हैं। लकीली फॉर्चुनेट एनफ कर तो भारतीय बनना ही है। सो सारी भारतीयों की जो अच्छी बातें होती हैं वो आपके अंदर होनी चाहिए। मैं तो बहुत खुश होती हूँ, सोचती हूँ फाउंडर प्रिंसिपल ने कैसे सोचा, सर की ब्लेसिंग्स हमारे साथ है, उन्होंने नाम भी भारती रखा और हम उसे प्रूव करने में लगे हैं। आने वाली जनरेशन भी करेगी और आप लोग ही तो बनाओगे बेटा, ऐसी जनरेशन आप लोग ही बनाओगे जो हमेशा फक्र करेगी एक अच्छे स्कूल पर, एक अच्छी शिक्षा पर, एक अच्छे पेरेंट्स पर। तो ये सारी चीजें मिलकर आपकी हेल्प कर रही हैं और आप इस तरह से आगे बढ़ रहे हो। आप जाने अनजाने में बहुत अच्छी अच्छी बातें सीख रहे हो, आपको पता ही नहीं है, लेकिन ये सब चीजें बहुत काम आएंगी, इतने काम आएंगे कि बस आप खुद बार बार ब्लेस करेंगे अपने बचपन को और फिर अपने बच्चों से शेयर करेंगे। अच्छी अच्छी बातें करना। अगर आपको कभी लगे कि कोई दोस्त आपको फ्रेनेमी लग रहा है, फ्रेंड नहीं लग रहा है, वो एनिमी लग रहा है, तो उसको सेंस आउट कर लेना, थोड़ा सा उसे इग्नोर करना। अब कैसे कैसे हैप्पी कैसे रहना है ये तो आपको समझ आ गया। अब अगर हैप्पीनेस रहने में कुछ जो सोसाइटी हमें तंग करती है तो उसमें हमें क्या क्या चीजें नहीं करनी है, उसके लिए अगर पेन पेंसिल है तो नोट कर लीजिए। 4A हैं, ए वो बताती हूँ मैं आपको कौन कौन से 4A हैं। मम्मी पापा भी सुने, इट्स नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स, इट्स फॉर एवरीवन टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग। पहला ए है टू अवॉइड। पहला ए है अवॉइड that person, that situation, that event which is not good for you, which is full of negativity. Avoid it. To become a positive soul, you have to avoid it. अगर avoid करना भी मुश्किल हो रहा है, ये फैमिली में भी होता है, अगर एक की कोई बात अच्छी नहीं लगी तो थोड़ा टाइम के लिए अवॉइड कर दो उस बात को। और उसके बाद आपने नेक्स्ट ए इज alter, ALTER. alter means to change. चेंज कर लो, मतलब चेंज करने की कोशिश करो किसी तरीके से, उस सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश करो, उस इंसान को चेंज करने की कोशिश करो। वो भी नहीं अगर होता तो फिर क्या करोगे? अडेप्ट, ADAPT। अडेप्ट मीन्स आप उसको अडेप्ट कर लीजिए कि ये अब ऐसा ही है और ऐसा ही होगा। आई एम अनेबल टू चेंज, तो अब मुझे इस स्थिति को, इस इवेंट को अडेप्ट करना पड़ेगा। और अडेप्ट के बाद लास्ट ए इज एक्सेप्ट। फिर मुझे अब ये सोचना है कि अडेप्ट भी कर लिया मैंने, फिर भी मुझे अब क्या करना होगा? अडेप्ट करने का मतलब है कि आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये 4A जिसको समझ आ जाएंगे वो हमेशा खुश रहेगा, और वो जो 5 खुश रहने की बातें थी वो समझ आ जाएंगी कि खुश रहना है तो डोंट शो ऑफ, थिंक more and speak less. Silence is very important for you guys. अगर आप थोड़ी देर भी चुप रहकर अपने आप से बात करते हो तो आपको आंसर हमेशा अच्छे मिलते हैं। Okay? 4A's are clear to you. Avoid, alter, adapt and accept. Okay? और उसके बाद अगर आपको हैप्पी रहना है तो वो तो आप वैसे ही बहुत खुश हैं, सब लोग बहुत अच्छी जगह पर हैं, अच्छे घरों में हैं जहां उनको एक दूसरे के साथ अच्छी बातें करने का मौका मिल रहा है और रहते रहते वो जिंदगी को करीबी से समझ रहे हैं और एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं।
बहुत से पेरेंट्स अब अपने बच्चों की ऐसी हिडन क्वालिटीज को जज कर रहे होंगे कि उनके पास उनका बच्चा ये भी जानता है, अरे इसकी तो इंग्लिश मैंने कभी सुनी नहीं है, तो बड़ा अच्छा इंग्लिश में बात कर रहा है, बहुत अच्छा बोल रहा है। तो ऐसी चीजें जब उनको समझ में आएंगी तो कितना मजा आएगा। अब आपको याद रखना है कि आप जिंदगी के उस रास्ते पे अगर कोई हर्डल नहीं चाहते और आप पिकनिक में जा रहे हैं कहीं फैमिली के साथ, और आप चाहें कि बस यहाँ से हम शुरू करें इतने बजे और इतने बजे वहां पहुंच जाए, रोड बिल्कुल सीधी हो, और क्या वो एंजॉय करेंगे आप राइड? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उस राइड में तो मजा ही नहीं है, और तो और जो ड्राइवर चला रहे हैं वो ही सो जाएंगे बोरियत से। कुछ मजा चाहिए, कुछ हर्डल चाहिए। तो हर्डल्स को मजे में लेने वाला ही खुश इंसान है, और स्ट्रेस को पैशन में बदलने वाला खुदा है। उससे तो सब कुछ करवा लो, उसको किसी चीज की चिंता नहीं होगी। तो हमें कोशिश करनी है कि हम ये सब चीजें करके रखें। एक छोटी सी बात और, 2 शब्द होते हैं जिससे आप किसी भी बात का फैसला करते हैं। एक होता है डिस्कशन और दूसरा होता है डिबेट। तो हमारी लाइफ में, हमारी फैमिली लाइफ में, बॉन्डिंग में या किसी के साथ भी कभी भी डिबेट्स आर नॉट गुड। Discussions are always better than debates, because discussion end up with who is right और what is right में अगर हम देखें तो discussions always end up at what is right। लेकिन डिबेट्स ईगो के साथ लड़ती हैं। डिबेट में ईगो होता है। डिबेट कभी भी नहीं जानती कि व्हाट इज राइट। डिबेट कहती है तुम गलत हो, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। ये लड़ाई हो रही होती है, और हम दूसरे पार्टनर को तो कहते ही अपोनेंट है। इसलिए कोशिश करो कि फैमिली में या कहीं पे भी हमेशा, फैमिली के लिए अगर आप स्पेशली लर्न कर लें ये बात, कि डिबेट नाम की कोई चीज नहीं है। ना कोई बच्चा डिबेट करेगा कभी पेरेंट्स से, ना पेरेंट्स अपने बच्चे से, और ना ही हम अपने पेरेंट्स से करेंगे। हम हमेशा डिस्कस करेंगे। अगर डिस्कस करेंगे तो हम सोल टू सोल बात करते हैं, और अगर हम डिबेट करते हैं तो हम ईगो टू ईगो बात करते हैं। जो इधर खींचता है इधर खींचता है, तुम गलत हो, तुम ठीक नहीं हो, ये सब हो रहा होता है डिबेट में। इसीलिए कोशिश होनी चाहिए कि हमेशा हम डिस्कशंस पे बात करें। ओके, एंड most important thing is vocabulary we use. The vocabulary we use has to be very nice, very sweet. कोई ऐसा शब्द गलती से भी नहीं निकालना मुंह से जिससे दूसरों को तकलीफ हो। ओके, और अपने तरीके से सोच के पॉजिटिव बातें करेंगे तो ना हम किसी को तंग करेंगे, ना वो हमें तंग करेगा, ना बद्दुआ देगा। वहां से भी ब्लेसिंग्स आएंगे और हम भी गिवर हो जाएंगे, हम भी देंगे। क्योंकि कोई भी स्थिति हमारी खराब होती है ना, मनस्थिति, जब हमारे मन की स्थिति, हमारे दिमाग की स्थिति जब खराब होती है तो होती किस लिए है? वो परिस्थिति के लिए। तो परिस्थिति क्या है? पर मीन्स पराया। वो उसकी स्थिति है, उसकी स्थिति के लिए मेरी स्थिति खराब हो जाए? नो, आई विल नॉट बी एबल टू डू दैट। ऐसा तो मुझे गवारा नहीं है। उसकी वजह से मैं अपने आप को खराब कर दूं? नो। बच्चों, एडोलेसेंट एज में ऐसी चीजें बहुत मिलेंगी, लाइफ में ऐसे हर्डल्स बहुत आएंगे, बहुत गलत लोग आपको खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप ये समझ जाना, मेरा ये एग्जाम्पल, ये परिस्थिति है, ये सिचुएशन है, ये पर की स्थिति है। पर मीन्स पराये की स्थिति है। तो आप उसको अपने ऊपर नहीं लेना, उसका कोई श्राप नहीं लेना, कोई गलत बात उसकी मत लेना अपने ऊपर। आप अपनी पॉजिटिव वाइब्स को बढ़ाओ, और आपकी पॉजिटिव वाइब्स उसे अगर ठीक ना कर पाई तो कम से कम वही रोक देंगी। उत्तर रामायण की तरह भी वो तीर वही रुक जाएगा, आपके पास नहीं आएगा। सो बी केयरफुल। आप उस तरह के लोग हो, उस तरह की सोल्स हो जिसको कितना भी काम, अनटैप्ड एनर्जी है आपके अंदर। और इस एज में कभी भी माइंडफुली डिसीजन के बिना कोई स्टेप मत उठाना, चाहे वो किसी बच्चे के बर्थडे पे क्रॉस रिवर तक जाने का क्यों ना हो। नहीं उठाओगे आप बिल्कुल उसको तसल्ली से पहले समझोगे, अगर वो सच होगा तभी करोगे। और अगर आपके किसी फ्रेंड ने फोन ले लिया और आपको कहा कि आप भी एफबी अकाउंट बनाए, आपको कोई जरूरत नहीं है बनाने की।
आप अभी बच्चे हो, बचपन में रहो, कोई जरूरत नहीं है सोशल आइडेंटिटी, जिंदगी काटो 12 तक, तब आप अपने आप में इतने मैच्योर हो जाओगे कि समझ जाओगे, और मम्मी पापा आपका साथ देंगे, आपके साथ रहेंगे। किसी को देख के कंपेयर मत करना कभी भी कुछ, उसके इतने लाइक्स हैं, उसके इतने फ्रेंड्स हैं, उसकी तो इससे बात होती है, मेरे से नहीं होती है, मैं भी अपनी दोस्त बनाऊंगा। नो, नॉट एट ऑल। एक दिन जून में मैं आपसे ऐसे बात करूंगी, चाहे पेरेंट्स सुने या ना सुने, टोटली बच्चों को कैसे ठीक रहना है, एडोलेसेंट बच्चों को। बहुत मजा आएगा बच्चों, आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी और बता के प्रूफ कर दूंगी, ज्योमेट्री के क्वेश्चन की तरह, हैंस प्रूव्ड कि मैं ठीक हूं। आप गलती करते हो तो आप ही गलत होते हो, इसलिए मुझे वो मौका देना। कोई एक दिन ऐसा जून में निकालेंगे जब हम आप लोगों से खूब बच्चों वाली बातें करना चाहती हूँ मैं, आपके लेवल पर आकर, और आपको ये समझाना चाहती हूँ कि जिंदगी कितनी खुशनुमा हो सकती है अगर हम सोचें तो। मैं चाहती हूँ कि जब 4 साल बाद मेरे स्कूल में आप 12th में आए तो आप सब सेंटली फिगर हो, इतने अच्छे हो कि दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम आपको तंग ना कर सके, और वैसे बन भी जाओगे आप, क्योंकि क्वालिटीज हैं। अभी आप बिल्कुल अछूते हो, उन सब प्रॉब्लम्स कोई नहीं है प्रॉब्लम, लेकिन आप धीरे धीरे बड़े होते हो ना, 8th में आते हो, पेरेंट्स बोलते हो अब तो मेरा बच्चा बिल्कुल चेंज हो गया। चेंज तो हम करेंगे लेकिन अच्छी तरफ करेंगे, ये हम प्रॉमिस आपसे करना चाहते हैं। ओके, सो डोंट यूज दैट वोकैबुलरी विच हर्ट्स अदर, विच इज नॉट सुटेबल फॉर अ पीसफुल सोल। ओके, तो आप लोगों को ये जाते जाते मैं बता दूं कि आपको ताकत विचारों में रखो, शब्दों में नहीं, क्योंकि फसलें बौछारों से हुआ करती हैं, तूफानों से नहीं। शब्द तो तूफान खड़ा कर देते हैं, जैसे महाभारत में हो गया। ठीक है, हुआ ना, महाभारत में क्या हुआ था, उनकी बुरी बातें, उनकी बुरी सोच, उनके शब्द कितने ऐसे थे कि वो दूसरे आदमी को भी परेशान कर रहे, और इतना बड़ा लड़ाई का रूप हो गया। तो फिर शब्दों का खेल है। शब्द अगर अच्छे हैं तो आपके विचार हूबहू दिखेंगे, अच्छे लगेंगे, दूसरे आपको अच्छा समझेंगे। आपके घर में कोई आता है तो वो आपकी दीवारों की, आपके सोफे की, आपके कर्टन्स की, किसी चीज की तारीफ नहीं करता, वो शो ऑफ है। वो तारीफ अगर एक बार करता है कि सर आपके पास आके ना बहुत मजा आता है, आपके साथ बैठकर बहुत अच्छा लगता है, आप दुनिया में सबसे ऊंचे इंसान बन जाते हैं उस वक्त। आपके पास तो कुछ वर्ड्स ही नहीं होते कहने के लिए उसे, लेकिन आपकी खुशी अंदर से ही झलकने लगती है, अरे ऐसा क्या है मेरे पास। लेकिन फिर भी ऐसा हमें फील हो जाता है कि कुछ लोग ऐसे लगते हैं जिंदगी में, कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिनके साथ भी खड़े होने में ना पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि कुछ वाइब्स ऐसी आ रही हैं कि अच्छा नहीं लग रहा, मुझे सेंस हो रहा है कि कुछ मैं जिससे बात कर रही हूँ वो मजा नहीं आ रहा। क्यों लगता है? दोनों चीजें लगती हैं, पता भी चलता है कि कौन अच्छा है और ये भी पता चल जाता है कि किससे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम बचपने में या जाने अनजाने में या शो ऑफ करने के चक्कर में, स्टेटस बनाने के चक्कर में, अरे लोग क्या कहेंगे, मैं एफबी पे नहीं हूँ, माय गॉड, सारी जिंदगी पड़ी है इस गंदे काम के लिए। वो काम तब तक गंदा नहीं रहेगा जब आप समझदारी से करोगे, अभी तो आप बिगड़ जाओगे। आपका इतना कीमती समय, जो इनोवेशन है आपके अंदर, वो सारी इनोवेशन खत्म हो जाएगी और वो रेडीमेड, रेडी रेकनर्स चीजों में चली जाएगी। एंड दिस इज ऑल बुलशिट, आई एम टेलिंग यू, दिस इज ऑल बुलशिट, दिस इज ऑल शो ऑफ। मुझे आप लोगों से एक सेशन जरूर ऐसा लेना है जिसमें मैं इंटरैक्टिव सेशन रखूंगी, आप अपनी बातें रखेंगे सामने और बताएंगे कि मैं इससे क्या चाहते हैं, कि ये चीज कैसे ठीक हो सकती है, और मैं वो करने की कोशिश करूंगी बेटा। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, एंड नाउ I will give you time to talk. You can chat you can type your question in the chat box. We may take care of that, and 2-3 questions can be taken. और कोशिश रहेगी हमारी कि हम आपकी सारी बातों को सुने और समझें और उस तरह से उसके आंसर्स दें, और अगर दे सके तो ठीक है, नहीं दिया तो नेक्स्ट टाइम फिर इस तरह से कोई वेबिनार रख लेंगे विद एनी ऑफ द टॉपिक
whatever you feel like too. आप लोगों की suggestions हमेशा welcome है. Thank you so much and get ready. 30th तक तो हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे ही करेंगे. And love you all.